میں سلمان رشدی سے ملا رہے ہیں. ٹھیک ہے ان کو میں منع بتاتا ہوں مجھے نہ منع آپ کریں. ملا رہے ہیں، وہ آپ کو ایک دلیل کی طور پہ پیش کر رہے بھائی ہیں جان کہ جو دلیل کے مخالف جواب میں پھر وہ لفظ جو یوز نہ سلمان کروں. اچھا چلے رشدی یار کو منع 2 کر دیں. منٹ دے دیں. ہاں جی چلو میں 2 منٹ ریسٹ ابھی کر رہا دیں ہوں. جی ان کو تقلید آپ 2 منٹ دیں. 2 منٹ دیں جی. ان آپ کا نے ان ریسٹ میں کریں بولنا ٹائم. نہیں ہے، اگر بولو گے تو پھر دوبارہ پھر 2 منٹ سٹارٹ ہوں گے ان کے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ بٹ صاحب، ایک سیکنڈ یہ لگ گئے. جی آپ نے اپنے تمام دلائل اسلام کے دشمنوں سے سیکھی ہیں، ہمیشہ ہم نے تصدیق پائی ہے. سلیمان رشدی بھی یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو آپ کا قرآن پیش کر رہا ہوں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو بھی اپنے مرزا صاحب کی کتابیں پیش کر رہے ہیں. مرزا صاحب کو ہم مانتے، آپ نہیں مانتے. قرآن کو ہم مانتے، سلیمان رشدی نہیں مانتا. تو آپ نے تمام طریقے جو ہیں وہ سلیمان رشدی سے سیکھے ہوئے ہیں. بھئی آپ نے اللہ کے حضور جا کے یہ نہیں کہنا ہے کہ اللہ کے حضور جب آپ صاحب کتاب دینا ہے کہ ہم نے عقیدہ اس لیے بنایا تھا کیونکہ مرزا صاحب کی کتابیں آ گئی تھیں. آپ نے جا کے بتانا ہے کہ ہم نے عقیدہ اس لیے بنایا تھا کہ قرآن نے یہ عقیدہ پیش کیا تھا. یہاں تو اگر آپ بتائیں کہ آپ نے کیا جا کے وہاں پہ یہ کہیں گے کیونکہ ہمیں احمدیہ جماعت کی کتب مل گئی تھی ہم نے عقیدہ بنا لیا. اور بھائی آپ نے قرآن سے عقیدہ بتانا ہے تو قرآن سے میں آپ کو پوچھ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں آپ کے عقیدہ کی بنیاد کہاں پہ ہے. آپ لوگوں نے جو عقیدہ بنا لیا اس کا نقصان ہی نقصان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومن آیت نمبر 34 میں، یوسف کی وفات کے بعد تم یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کوئی رسول نہیں بھیجے گا، تم نے دوسرے سے تجاوز کی. اللہ تعالیٰ تو گمراہ ٹھہراتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہے کہ کوئی رسول نہیں ہے وہ گمراہ ہے. یہ فتویٰ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سنایا، قرآن محفوظ کر لیا، اور یہ فتویٰ میرے لیے حکم ہے. آپ کہتے ہیں ہمارے لیے فتویٰ یہ ہے جیسے کوئی حیثیت ہی مجھے رکھتا. تو مجھے آپ ہماری کتابیں نہ بتائیں. مجھے پتہ ہے ہماری کتابوں میں یہ جو عقیدہ ہے ہم نے آپ کے علماء کی کتابوں، مولویوں کی کتابوں سے نہیں لیا. ہم نے مرزا صاحب نے ہمیں سمجھایا اور میں قرآن میں اس کی تصدیق پائی ہے. میں قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں اپنا عقیدہ. تو بھئی قرآن سے بتائیں کہ اگر قرآن سے آپ کے عقیدے کا تعلق نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی. ہاں ہم پھر ایک سیشن رکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ میں صرف آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ بھئی ہماری کتب میں ہمارا عقیدہ کس طرح پیش کیا گیا ہے، اور وہاں پہ میں پھر یہ تجدیدات لے لوں گا. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال قرآن سے مجھے بتائیں اگر کوئی دلیل ہے تو. اگر نہیں دلیل تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی ہوئی ہے کہ رسول کہے گا میری امت نے قرآن کو ترک کر دیا. اجماع تو گیا، اجماع تو فارغ. جس نے ایسے عقیدے میں جماع کر لیا جو عقل کے خلاف. اچھا صبر سعید صاحب، پہلے تو یہ اجماع فارغ ہو گیا. اب میں یہاں پر اگر کہوں کہ مرزا قادیانی صاحب کی کتابوں کو انہوں نے فارغ کر دیا تو آپ برا منائیں گے. تو اس لیے بٹ صاحب کو روکیں کہ اتنی شعلہ مکالی کریں، اتنی شعلہ مکالی کریں جتنی سننے کا حوصلہ ہو. بس اتنا میں نے کہنا تھا. میرا ٹائم جاری رکھیں. بٹ صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں نا، اس کے مطابق بات کریں. اپنا اب وہ صحیح کر رہے ہیں، میں ہی غلط کر رہا ہوں. بہت شکریہ. میرا ٹائم لگا دیں. آپ کا ٹائم لگانے لگا ہوں. جی جی لگائیں. دیکھیں یہ مرزا صاحب کے بیٹے کی عبارت ہے. قمر الانبیاء کہا گیا ہے مرزا صاحب کی طرف سے اسے. یہ قرآن سے باہر کی باتیں ہیں. کہہ دیں اس کو کہ یہ کتابیں بھی اسی طرح سے ہیں جس طرح سے سٹینک ورسز لکھی گئی ہیں. کہہ دیں، مان لیں. بھئی میں تو آپ کو آپ کے گھر کی دلیلیں دے رہا ہوں. کیا لکھا ہے انہوں نے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آخری نبی ہیں. اب آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ جو یہ مانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں وہ بیسیکلی حد تک کر رہا ہے قرآن کی، اللہ کے کلام کی، رسول اللہ کی نبوت کی حد تک کر رہا ہے. اس کو بانج کہہ رہا ہے. ابھی دیکھیں وہ بانج کہہ رہے ہیں. اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس تشریح سے جو ہم اس رسالہ میں بار بار کر چکے ہیں، ظاہر ہے کہ جہاں تک پہلی 2 قسم کی نبوت کا سوال ہے، یعنی نبوت تشریح اور نبوت مستقلہ، ان میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا بالکل ظاہر اور عیاں ہے. بھئی ان کو عیاں نظر آ رہا ہے، آپ کو عیاں نظر کیوں نہیں آ رہا بٹ صاحب؟ اگر آپ کو عیاں نظر نہیں آ رہا کم سے کم اس کا مفہوم سمجھا دیں. انہوں نے اینڈ پر یہی نتیجہ نکالا ہے. پس اس صورت میں بھی بہرحال آپ ہی آخری نبی ہیں. اب یہاں پہ نمبروں کے حساب سے آخری نبی تو رسول اللہ کو قرار دے دیا آپ نے خود، آپ کے گھر والوں نے خود. آپ ان کے بھی روگردانی کر رہے ہیں صرف میری مخالفت میں، صرف مسلمانوں کی مخالفت میں، صرف ہماری مخالفت میں. آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن کی طرف آئیں. سوال میں نے کیا تھا، وہ قرآن کی آیت پیش کر دیں جہاں سے تشریح نبوت کا اور نبوت مستقلہ کا خاتمہ ہوا ہے. وہ آیت پیش کر دیں، بڑی مہربانی. نمبر 1. دوسرا یہ ذلی بروزی نبوت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ 2 ہی سوال ہیں، اس کا جواب دے دیں. میں قرآن پہ واپس آ جاتا ہوں. جی بٹ صاحب، ڈیبیٹ کا ٹائم آپ کا لگانے سے پہلے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں تو میرے ہاتھ کھڑے ہیں، کسی اور کو جا کے ٹائم لگائے
मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई नई बात नहीं आ रही, बार बार वही हो रही है। मैं इस डिबेट का हिस्सा नहीं हूँ। आप खुद आपस में टाइम लगा रहे हैं और जाके अकेले डिबेट करते रहे, हाँ जी। वही सेम बातें, वही ना नहीं, वो बात। अगर बात ये है कि अगर दोनों पार्टियां बात करना चाहती हैं तो हम उनको ये कहना तो बड़ी बेजौकी की बात होगी कि आप बात बंद कर दें। तो नहीं वो अगर कोई करें सही भाई, आप करें आप इनके साथ, मुझे तो अगर मैं वेस्ट ऑफ नहीं टाइम है, क्योंकि उन्होंने कितना ही नहीं पेश किया ये काजमी आप साहब कैसे ने। डिसाइड कर रहे हैं? है सबर जाएगा पूरे मजमून को समझ, ये क्या तरीका कार हुआ यार? हुसैनी एक साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी भाई आप वालेकुम बात सलाम। करें। हाँ जी। देखें, मैंने कोई चाइनीज जुबान में बात नहीं की थी, आसान सलीस उर्दू में बताया सैनिक था। साहब, दूसरे जोन में मुझे 30 सेकंड मिल सकते हैं अगर यार इजाजत ना हो। कोई बार बार नहीं आए, मिल सकते, नहीं जब मिल बात एक सकते चल भाई। रही है। अगर सैनिक साहब इजाजत देंगे तो नहीं कोई यार क्या हो हमारी गया? बात चल रही है, आप हर सैनिक बात साहब में मिलेंगे। जाते हैं। व्हाट्सएप पे एतमाद करें। जब राशिद भाई जरूर जब आपको देंगे, इनकी इनका असल में दो 2 बंदों मिनट की चल रही है, वो खत्म हो जाए फिर आपको मिल जाएंगे। तो नहीं, मैं सिर्फ जब इसी दो बारे में बंदों का 10 सेकंड में मुनाजरा कुछ चल रहा कहना होता चाह है रहा ना, था। वो उनको तो फिर उसकी बात हो सकती है, उससे नहीं पहले नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कोई नई बात करनी है, मैं सिर्फ इनसे ये अर्ज कर यार रहा भाई हूँ। हमारा वो तसल्सल मर्जी एक करें, नारा लेकिन है। हमारा मतलब टाइम टाइम जाया जो हो लगा रहा है हुआ है उसको उसका भाई, भी हमारा तो टाइम आप दोनों जाया कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, प्लीज एक दूसरे की बात का जवाब दें। अल्लाह का आपको बात है, दोनों से कह रहा हूँ, दोनों से हाथ हाँ जोड़ जी, के हमारा हाँ टाइम जी, जाया ना करें प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपका हाँ टाइम जी, स्टार्ट ये हुआ। तो जबरदस्त बात होगी। चलो क्या अच्छी भाई, बात हो हाँ गई। जी, क्या भाई आप इनका टाइम हाँ हुसैनी जी, साहब ये ज्यादा अच्छी बात होगी है ना। ये टाइम हाँ स्टार्ट हो जी, गया था। हाँ जी। देखिए भाइयों, मैंने आसान उर्दू अल्फाज में बात की थी कि वही अल्फाज गुलाम के बदले गुलाम, आजाद के बदले आजाद, औरत के बदले औरत, वही अल्फाज, लेकिन हम औरत समझे, सुलेमान रुश्दी औरत समझता है। एक तो ये बात, तो ये नहीं कह सकता कि ये अल्फाज हैं। आप जो अहम दिए वो भी उन अल्फाज को उसी तरह समझते हैं जैसे हम समझते हैं। भाई नहीं समझते हम, जैसे मैंने सुलेमान रुश्दी की और कुरान की मिसाल दे दी। दूसरा मैंने इनको जवाब दिया था कि अभी फिलहाल मैं जानना चाहता हूं कि आपके अकीदे की दलील कुरान में क्या है। अगर आपने मिर्जा साहब की किताबों में बात करनी तो अलहदा सेशन रख लेंगे। तो क्या ये समझ नहीं आई किसी को मैंने क्या कहा है? अभी फिलहाल मैंने फिर आयत भी पढ़ी कि अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह के नाज़िल करदा कलाम के मुताबिक फैसला नहीं करता वो काफर है, जालिम है, फासिक है। तो कुरान से इन्होंने अपना अकीदा पेश करना है।
جب ختم کر دیا تو اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا، اجرائے نبوت باطل ثابت ہو گئی۔ یا تو بٹ صاحب یہ کہیں کہ یہ ترجمہ جو میں نے پیش کیا ہے یہ ترجمہ ان کو قبول نہیں ہے، پھر اس پہ جرا کریں، یا اپنا ترجمہ پیش کریں کہیں سے مستند اور بیان کریں۔ پھر بٹ صاحب نے کہا کہ مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ سلسلہ نبوت جاری رہے گا قیامت تک، اس کی دلیل کدھر ہے؟ سوائے زبانی جمع خرچ کے پروفیسر صاحب نے کوئی یہاں پر حوالہ پیش نہیں کیا، اور میں یہاں پر کتنے حوالے پیش کر چکا ہوں، قرآن کی آیت بھی پیش کر دی ہے۔ بھائی ہمارا عقیدہ ہے کہ جو سلسلہ نبوت حضرت آدم سے شروع ہوا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے اکمل ہو گیا، اشد ہو گیا، اقوا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب فہرست نبوت میں کوئی نیا مدعی نبوت داخل نہیں ہو سکتا، اور جو داخل ہوگا اس کو جو ہے وہ جھوٹا کہا جائے گا کہ وہ جھوٹا مدعی نبوت ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ ایک دفعہ اپنا عقیدہ بیان کر دیں پورے کا پورا، پھر اس پہ گفتگو میں بھی کروں گا، آپ بھی کیجیے گا۔ اب آپ نے اپنا عقیدہ بھی بیان کرنا ہے اور میرے سوالات کے جواب بھی دینے ہیں۔ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جہاں سے آپ تشریعی اور مستقل نبوت بند کر رہے ہیں، اور قرآن کی کون سی آیت ہے جہاں سے آپ ذلی بروزی نبوت کو جاری کر رہے ہیں؟ یہ پیش کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی دیں وقت ان کو۔ جی ہو گیا، ویسے 2-3 سیکنڈ رہتے تھے۔ ختم نبوت صاحب آپ کریں سٹارٹ۔ جی جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ جو آیت پیش کر رہے ہیں ہمارے عقیدے کے عین مطابق پیش کر رہے ہیں، اور مرزا صاحب نے اس آیت سے وہی نتیجہ نکالا ہے جو ہم نکالتے ہیں کا۔ اب آپ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کہیں پہ لکھا ہے کہ نبی کی وسلم نے جسمانی طور پر کسی نبی کو ختم کیا، روحانی طور پر ختم کیا، اور ہم مانتے ہیں کہ تمام گزشتہ سلسلے روحانی طور پر ختم ہو گئے۔ نبی کی وسلم کی نبوت بذات خود اپنی نبوت جاری ہے شریعت والی، اور ہم بھی مانتے ہیں، مرزا صاحب یہ مانتے ہیں، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شریعت والی نبوت جاری رہے تو نبی آتے رہتے ہیں۔ تو وہی مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں عقیدہ پیش کیا ہے۔ بانج نبوت کا تصور توہین ہے، نبی کی وسلم کی نبوت کی، قرآن کی توہین ہے، خدا کی توہین ہے کہ اس نے پہلے ایسی نبوت بھیجتا رہا شریعت والی جہاں پہ نبی آتے رہے اس شریعت میں اور امت کو فائدے دیتے رہے۔ اس شریعت میں کسی قسم کا کوئی نبی نہیں، اس شاخ میں جو نبوت کی ہے یہ سرسبز و شاداب نہیں، خشک ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی روحانی وجود پیدا نہیں کرے گی یہ شریعت دوسری امتوں کی طرح۔ تو بھائی جو آپ نے آیت پیش کی ہے، مرزا صاحب نے اس آیت کے حوالے سے ملفوظات جلد 5 صفحہ نمبر 58 میں لکھا ہے کہ یہ توہین ہے اگر کہا جائے کہ نبی کی وسلم کی اولاد بھی نہیں ہے، پھر یہ بھی کہا جائے کہ کوئی امتی نبی بھی نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت تک آتے رہیں گے نبی۔ تو بہرحال آپ نے مجھے ابھی بتانا ہے کہ یہ جو آپ نے ایک بانج نبوت کا تصور بنایا ہے، عقیدہ بنایا ہے، قرآن میں اس کی کیا دلیل ہے؟ جو آپ آیت پیش کر رہے ہیں تو ہمارا عقیدہ پیش کر رہی ہے۔ نبی کی وسلم کی اپنی نبوت جاری ہے، دوسرے گزشتہ انبیاء کے سلسلے ختم ہو گئے ہیں، اور اپنی نبوت کیونکہ جاری ہے تو نبی آتے رہیں گے اس جاری ہونے سے، جیسے حضرت موسیٰ کی نبوت جاری تھی، نبی آتے رہے۔ تو بھئی ہم میرا عقیدہ نہ پیش کرو، اپنے عقیدے کو آیت پیش کرو کہ یہ جو نبوت ہے یہ بانجھ ہے، یہاں سے کوئی جاری نہیں ہوگا، اپنی بھی نبوت ختم ہو گئی، یہ عقیدہ پیش کریں۔ اگر جاری ہے تو پھر قرآن ہمیں بات
पैदा करने वाले लोग। आप ये कहते हैं कि हमारा ईमान ये है कि हम ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, ये बात अहमदियों की, हमने आपको मुसल इस्लाम में रहने नहीं देना, हमारी जाती जागीर है, हमने आपको नमाजें नहीं पढ़ने देनी, सिर्फ इस वजह से कि हम कहते हैं कि ये पैदा करने वाले लोग। आप ये कहते हैं कि हमारा ईमान ये है कि हम ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, ये बात अहमदियों की, हमने आपको मुसल इस्लाम में रहने नहीं देना, हमारी जाती जागीर है, हमने आपको नमाजें नहीं पढ़ने देनी, सिर्फ इस वजह से कि हम कहते हैं कि ये टहनी जो है, जो शाख जो है, ये खुशबूदार है, फल देगी, उम्मत को फायदा होगा। और कुरान से मिसालें बयान करते हैं। आपने ये बांझ किस्म की नबूवत का तस्वर कहाँ से लिया है भाई, मुझे भी समझा दो ताकि हम भी अपने आप को दुरुस्त कर ले। अगर आपके पास कोई दलील कुरान से नहीं है तो आपका इजमा तो गया, यानी कि इजमा नहीं। और यही कुरान कह रहा है कि रसूल कहेगा मेरी उम्मत ने कुरान को तर्क कर दिया। कुरान में एक भी दलील का ना होना, अकल के खिलाफ अकीदा होना, लेकिन इजमा कर लेना, तो उसकी तस्दीक हमें कुरान में मिलती है। अब आपने, मैं अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, तो अगर आप, हाँ अगर आप कल करना चाहते हैं मिर्जा साहब की बात, तो मैं हाजिर जो आपने हवाले पेश किए इंशाअल्लाह ताला मैं उनके जवाब दूंगा। ठीक हो गया, शुक्रिया। एक मिनट जरा सा कादमी साहब, आपने एक बात का उनको एड्रेस नहीं किया। उन्होंने भट्ट साहब ने सवाल किया है लेकिन आपने उसको एड्रेस नहीं किया, या पता नहीं मैं मिस कर गया हूं। मैं थोड़ा उनको अपनी टर्म लेने दें, आप बीच में नहीं कर दें, मैं मैं जो उसको बात एड्रेस कर कर दूंगा हुसैनी साहब, मैं मैं एड्रेस कर दूंगा, आप निशानदेही कर दें। मैं भी हो के मेरे से मिस हाँ हो गया यही हो, बताएं। मैं कोई बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि आप बांझ मानते हैं, तो आप वाकई बांझ मानते हैं या नहीं मानते, बस इस बात को। नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम नबूवत के साथ ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करने को हद तक करार देते हैं जो कि मुसलसल भट्ट साहब कर रहे हैं कई अरसे से। मैंने इसका जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये बात एड्रेस करने के लायक भी नहीं थी, लेकिन अब आपने निशानदेही की है, मैं कर देता हूं। हम नबूवत को बांझ नहीं मानते। हम कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है वो दायमी नबूवत है, क़यामत तक है, वो खुद ही काफी हैं, उनको किसी और की जरूरत नहीं। ये उसी तरीके से है जिस तरह अल्लाह ने अपनी अलूहियत की दलील दी कि अल्लाह को कोई किसी बीवी की जरूरत नहीं है, अल्लाह को किसी औलाद की जरूरत नहीं है, वो खुद ही कादिर मुतलक है, वो जानता है कि उसने क्या करना है, उसको कोई मददगार नहीं चाहिए। इसको बांझ नहीं कहते, इसको कहते हैं किसी चीज का कामिल होना। ये इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी किसी और की जरूरत नहीं है। उनकी कामिल अकमल नबूवत कुरान मजीद में हमेशा तक के लिए महफूज कर दी गई, क़यामत तक के लिए पैगाम दे दिया गया। ये हमारा अकीदा है खत्म नबूवत का। और मैंने पेश कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत मानना नाकिसा नबूवत, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद तक है, ना कि उनका फायदा। अब मैंने 3 सवाल किए थे भट्ट साहब आपसे, आपने एक को भी एड्रेस नहीं किया। मुझे वो कुरान की आयत क्यों नहीं दे रहे आप कि जहां से आप नबूवत तशरीई और नबूवत मुस्तकला बंद कर रहे हैं और दिल्ली बरूजी नबूवत जारी कर रहे हैं? वो जो आप गैर बांझ कर रहे हैं नबूवत को, वो कहां से कर रहे हैं? वो आयत पेश करें, कतई तौर पर उसमें लिखे होने चाहिए अल्फाज। फिर आप कह रहे हैं सब शाखें और ये तमाम बातें कुरान में कहां लिखी हैं? अगर कुरान में है कहीं पर तो आप पेश कीजिए। अगर आपका इस्तदलाल है तो आपका इस्तदलाल आपको मुबारक हो। ये दावा तो हो सकता है, आपकी दलील नहीं हो सकती। दावा बार बार दोहराने से दलील खुद ब खुद जन्म नहीं लेती, दावे के ऊपर दलील देनी पड़ती है। जैसे मैं दलाइल आपके सामने पेश कर रहा हूं, अकली दलील दें और कुरान की नस से दलील दें। अगर कुरान की नस आपके पास होती चलें भट्ट साहब, तो अब आपकी बारी, शुरू हो गया आपका टाइम। देखें जी, यहूद ने भी हमेशा आज तक यही समझा है कि उन्हें नबी की जरूरत नहीं है। तो क्या नबी की उसने क्या फरमाया था, मेरी उम्मत की तरह हो जाएगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब भी नबी आया यहूद ने इनकार किया, तो मुसलमान इसके अकीदे के नतीजे में क्या करेंगे? इनकार करेंगे। तो नबी की उसने क्या फरमाया था, मेरी उम्मत कैसे हो जाएगी? यहूद की तरह हो जाएगी। भाई ये तो क्या नबी की उसने क्या फरमाया था, मेरी उम्मत की तरह हो जाएगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब भी नबी आया यहूद ने इनकार किया, तो मुसलमान इसके अकीदे के नतीजे में क्या करेंगे? इनकार करेंगे। तो नबी की क्या फरमाया था, मेरी उम्मत कैसे हो जाएगी? यहूद की तरह हो जाएगी। भाई ये अकीदा जो है ये आपको यहूद से मिला रहा है, 100% मिला रहा है, हर लिहाज से मिला रहा है। और अल्लाह ताला क्या कहता है, यहूद गज़ब का शिकार कैसे हो गए? अंबिया का इनकार किया। तो हम कहते हैं कि नहीं ऐसा होगा, अंबिया आते रहेंगे इस उम्मत में ताकि ये उम्मत गज़ब का शिकार ना, और लोग जो है वो जो मानेंगे उनकी वजह से अल्लाह ताला दूसरे लोगों को बख्श देगा।
देखिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए, पूरी यहूदी उम्मत को तो नहीं अल्लाह ताला तबाह किया ना, इस वजह से कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तक नेक लोग मौजूद हो मैं सजा नहीं देता। भाई हम जो अकीदा पेश कर रहे हैं, हम कहते हैं अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है कि ये रसूल कहेगा इस कौम ने कुरान को तर्क कर दिया, मेरी कौम ने, तो अल्लाह ताला तनहा नहीं छोड़ेगा इस कौम को, इस उम्मत को। अल्लाह ताला नबी भेज के अपने इनामात से नवाजता रहेगा ताकि कौम की तरबियत हो सके। मैं अगर आपके घर के टुकड़े टुकड़े कर दूं तो मैं आपका दोस्त हूँ नहीं दुश्मन। आप लोगों ने नबी की वसल्लम के दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो तो एक दिन लेके आए थे, आपने टुकड़े दर टुकड़े किए हुए हैं, फिर भी कहते हैं हमारा दीन वही है जो नबी की वसल्लम का नहीं है। आपका दीन वो जो कुरान का दीन है, क्या कुरान ये तालीम देता है टुकड़े टुकड़े कर दो नबी की वसल्लम के दीन को? तो फिर आप कहते हैं नबी की जरूरत भी नहीं। भाई आपकी हालत बता रही है कि आपके पास कुरान की कोई तालीम बाकी नहीं बची, इसलिए इस सूरत में फिर हमेशा नबी आता है जो कि उस तालीम को दोबारा उम्मत तक पहुंचाता है दुरुस्त सूरत में। ठीक है जी, कुरान का यही अकीदा है कि शरीयत वाले नबी हो, नबूवत जारी रहती है और उसकी उम्मत में नबी आते रहते हैं, यही हमारा अकीदा, इसके अलावा हमारा कोई अकीदा नहीं। और ये बांझ नबूवत, अगर आप बांझ नहीं लेना, आप ये ले लें कि चलें इस जी, हो नबूवत में गया, ताकत नहीं है कि तुम्हारे हो गया, हो गया, भट्ट साहब हो गया, हो गया, अच्छा टाइम मेरे हो 2 गया मिनट लगाएं आपका। जी, 2 मिनट लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब, बड़े अफसोस की बात है आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। आपकी बात को मैं पहले एड्रेस करता हूं ताकि आपको गिला न रहे। आपने कहा कि यहूद पर अल्लाह ने कुरान में लिखी हुई है ये बात कि यहूद पर गजब इसलिए हुआ कि जितने भी नबी आए उन्होंने उनका इनकार किया। ये आयत पेश करनी है आपने मुझे कि ये कहां से, कौन सी आयत से आपने ये इस्तदलाल लिया है, ये आपने पेश करनी है, नंबर 1। दूसरी, आपने बात की कि यहूद गजब का शिकार इसलिए हुए क्योंकि वो नबूवत के इनकारी थे। ठीक है, मैं इस बात को आपकी मानता हूं, लेकिन ये आपने मुझे कुरान की आयत पेश करनी है, उसके बाद ये इस्तदलाल पर पेश करना है। जबानी जमा खर्च मुझे नहीं चाहिए आपकी, आपके अकायद मैंने नहीं सुनने, मुझे दलील चाहिए आपके अकायद के पीछे। ठीक है, सवाल फिर रखता हूं, नबूवत जारी आप कह रहे हैं, तो तशरीह नबूवत जारी क्यों नहीं है? किस कुरान की आयत से आपने तशरीह नबूवत को बंद कर दिया? ओ भाई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले कितने तशरीह नबी आए हैं भाई, तशरीह नबूवत तो बड़ा इनाम है ना, उसको आप बंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर आप उसको बंद कर रहे हैं तो आप अल्लाह का एक बड़ा इनाम बंद क्यों कर रहे हैं? किस बुनियाद पे कर रहे हैं? वो आयत पेश करें जिस बुनियाद पर आप इसको बंद मान रहे हैं, और वो आयत पेश करें जहां से आप ये सरजब्जो शादाब नबूवत बख्श नबूवत का आप अकीदा अखज कर रहे हैं। ऐसे अल्फाज कुरान में तो मौजूद नहीं, आपने ये अल्फाज कहां से लिए? तो ये पेश कर दें कुरान से कि यहूद पर गजब इसलिए हुआ कि उन्होंने तमाम नबियों का इनकार कर दिया, नंबर 1। दूसरा, आपने मुझे ये पेश करना है कि तशरीह नबूवत आप जारी क्यों नहीं मानते? इतना बड़ा इनाम था, आप क्यों नहीं मानते? उसको नहीं मानते तो कुरान की कोई आयत दें। और तीसरा ये है कि अगर आप जिल्ली बरूजी नबूवत को जारी मानते हैं जो कि ऐसी किस्म कुरान मजीद में मौजूद ही नहीं है, वो कुरान की किस आयत से मौजूद लेते हैं? चलें भट्ट साहब, अभी आपकी बारी सवाल शुरू है, हो इनको गया, एड्रेस कर दें। अभी जी। आप बारी करें। मेरे ख्याल के मामला तो जो है ना रिपीटिशन की तरफ ही आ गए हैं, तो हाँ जी, ख्याल करें कि अपना जो है ना अच्छा, दिल्ली बरूजी का तो मैंने कहीं पे जिक्र ही नहीं किया, मैंने इस अंदाज में जवाब। हाँ जी जी, मैंने 2 मिनट लगा। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी, 2 मिनट लगा दे मेरे। 2 मिनट इनके दोबारा रीसेट कर दें। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ठीक हो गया। अच्छा, जिल्ली बरूजी नबूवत का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। मैंने आपसे ये कहा कि जो भी नबी आएगा वो अल्लाह ताला से अपनी नबूवत के दलाइल लेके आएगा, हम उन दलाइल को कुरान के सामने रखेंगे, दुरुस्त लगे तो मान लेंगे, ना दुरुस्त लगे तो नहीं मानेंगे, क्योंकि कुरान मुकम्मल किताब है, कुरान हाकिम है हर मामले पे, मुसीबी मामले पे। तो जो भी नबी आना है क़यामत तक उसने कुरान से अपना वजूद साबित करना है। ठीक है, तो ये होता हो गया आपको दिल्ली बरूजी का जवाब। फिर आपने कहा जी आप शरीयत वाली नबूवत बंद मानते। भाई नहीं मानते, मैं तो बार बार कह रहा हूँ नबी की नबूवत जारी है, क़यामत तक जारी रहेगी। तो अगर कोई आ जाए और कहे जी नबी की नबूवत जो है वो जारी नहीं है, कुरान से दलील देगा, तो अगर देगा देखेंगे, कुरान तो कह रहा है कि नहीं आ सकती कोई भी ऐसी नबूवत। ठीक है, तो जो कोई आएगा तो फिर उसको देखेंगे क्या करना है। अभी तो फिलहाल तो हमने कुरान को इस तरह समझा हुआ है कि क़यामत तक नबूवत जारी है। ठीक है, ये भी आपका मामला हो गया कि हम बंद नहीं मानते, भाई हम जारी मानते हैं।
दूसरी तीसरी बात आपने अगर आप मुझे कादरी साहब बता दें तीसरा सवाल क्या था? वो आयत पेश करनी थी आपने जिसमें गजब इसलिए हुआ हाँ, कि तमाम नबियों ने अब इनकार देखिए किया, वो आयत पेश अंबिया करें। के इनकार में तीन चीजें हो सकती हैं, या तो आपको इनाम मिल सकता है, या तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ तो आप गजब का शिकार होंगे। इन तीनों में से कोई ऑप्शन आप ले लें। मैं तो कहता हूँ गजब का शिकार होंगे। कुरान की तालीम यही है, सारी तालीम कुरान की यही है, मुकम्मल तालीम, कि अगर अंबिया का इनकार होगा, मुखालफत होगी, तो इंसान गजब का शिकार होगा। ना इनाम मिलेंगे, ना अल्लाह ताला भी छोड़ देगा कि तुम्हारे पास मेरे नबी। देखिए, ये तो अदालत भी आपको नहीं छोड़ती कि अदालत आपके पास कासत भेजे, आप उस कासत का इनकार कर दें जो आप कासत हुक्म लेके अदालत का आपके मैं नहीं मानता, तो अदालत भी नहीं आपकी छोड़ेगी, खुदा कैसे छोड़ देगा आपको? तो बहरहाल ये बड़ी वाज़ेह बात है। तो मैं समझता मैंने आखिरी बारी ले ली। कादमी साहब अब आप बात करें, 2 मिनट ले लें, तो मैंने तो उसके बाद कोई बात नहीं करनी। शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि अदालत आपके पास कासत भेजे, आप उस कासत का इनकार कर दें जो आप कासत हुक्म लेके अदालत का आपके मैं नहीं मानता, तो अदालत भी नहीं आपकी छोड़ेगी, खुदा कैसे छोड़ देगा आपको? तो बहरहाल ये बड़ी वाज़ेह बात है। तो मैं समझता मैंने आखिरी बारी ले ली। कादमी साहब अब आप बात करें, 2 मिनट ले लें, तो मैंने तो उसके बाद कोई बात नहीं करनी। शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद यही थी कि प्रोफेसर खत्म नबूवत साहब अजीम भट्ट साहब बस बात को इधर उधर घुमाएंगे। कुरान मजीद की आयत मांगी आपसे भट्ट साहब अपने अकीदे को जस्टिफाई करने के लिए, ने वो पेश नहीं की। बड़ी अजीब बात आपने कही। भाई आप कह रहे हैं जो भी नबी आएगा वो अपने दलाइल साथ लाएगा, उसे कुरान पे परखेंगे। तो भाई वो आयत पेश कर दें, वो दलाइल पेश कर दें कि जो नबी के लिए होने के लिए आप मान लेंगे, क्योंकि नबूवत के दावेदार तो आपकी जमात में भी फिर रहे हैं, आप नबूवत को जारी मान रहे हैं, तो फिर चीमा साहब को नबी क्यों नहीं मानते? सवाल तो ये है ना। लेकिन मसला क्या है? मसला यह है कि आप और आपके अकाबरीन भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद आखिरी नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब को मानते हैं। मैं हवाले पेश कर चुका हूं, लेकिन आप उन हवालों पर भी गुफ्तगू नहीं करते। कुरान की आयत मांगी है, आप मुझे अदालत की तरफ ले जाते हैं। भाई मुझे अदालत की तरफ ना लेके जाएं। अभी कुरान की आयत आपने खुद पेश की थी ना मुझे, कि भाई जो शख्स इस कुरान से फैसला नहीं करता वो फासिक और जालिम है। आप फासिक और जालिम क्यों बन रहे हैं? कुरान मजीद की आयत आप पेश क्यों नहीं करते? क्यों कुरान की आयत पेश करते हुए आपको जो है वो मतलब कोई अजीब गरीब मामला आपके साथ हो जाता है? मैं सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूंगा। कुरान मजीद की कौन सी आयत है कि तमाम तरह की नबूवत जारी है? वो आयत तो पेश करें। किधर लिखी हुई है ये बात कुरान में? हमारे कुरान में ये बात नहीं लिखी हुई। आप अपने पास देख लें, कोई आयत पेश कर दें, उसमें हम गुफ्तगू कर देते हैं। लेकिन आपकी जबानी जमा खर्च से क्या हो रहा है? सिर्फ ये हो रहा है कि आप अपने बुजुर्गों के अकायद से भी रूगर्दानी कर रहे हैं। इतने हवाले मैंने पेश किए हैं, मिर्जा साहब भी, मिर्जा साहब के बच्चे भी यही बात कह रहे हैं। एक ही को मिलनी थी नबूवत, उसको मिल गई, तो बात किसने किया? मानने के बावजूद आप लोगों ने खुद किया। आप उनके भी मुखालिफ जा रहे हैं। तो कुरान की वो आयत पेश करें जहां से आपने तशरीई नबूवत का खात्मा किया है और जिल्ली बरूजी गैर हकीकी गैर मुस्तकिल नबूवत को, एक नाकिस नबूवत को आपने जारी किया है। वो आपने मुझे पेश कर रही है। भाई ये तो हद तक आप कर रहे हैं चलें कि जी, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर तो मुस्तकिल नबी आवे, हो गया लेकिन आपके मेरा पास ख्याल है मुस्तकिल नबी ना आवे। हाँ जी, अब इनका सारे हो जवाब गया में ना कोई टाइम। बातें मैं मेरे कर ख्याल दूंगा। आपने हाँ जी, आप खत्म हो गए मुकाबला। अजीम साहब ने बोला था कि बस खत्म है कहानी। नहीं खत्म नहीं हुई, हाँ जी, आखिरी टर्म मैं लूंगा, इसकी लेकिन मेरे एक दो टर्म्स और कर लेते हैं। नहीं एकदम से नहीं ऐसा यार, नहीं होता आपकी कि एक देखिए फरीक मैं मुखालिफ पहले भी कह कह दे रहा था, कि मैंने बात खत्म बहुत कर हो दी गया है। ये नहीं तरीका होता, ये तरीका नहीं होता। यार। ये अब जब कौन चले मुनाजरा खत्म करें होता आखिरी है टर्म। तो इन्होंने कम बोला से कि कम मैंने दो लेनी टर्म है, होती तो है। इनको शौक है। यार मैं ये आपका ले फोन लें तो आखिरी उठाता हूँ, टर्म। ये बोलते रहिए, मैं आप सैफ ही अहमद बोलते दीद चले रहिए। साहब, बात ये आप होती है, लें बात ये टर्म होती लें। है कि आप एकदम से नहीं 2 कहते। मिनट आपके अब से लगा ये दिए याद मैंने। रखें, एक मिनट 2 यार, मिनट एक लग मिनट, चुके। सैफ अहमदियत भाई एक मिनट रुकें। देखिए, जब मुनाजरा खत्म करना है ना तो आप कर सकते हैं जब आप चाहें, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर कम से कम 2 टर्म्स रखें और अपनी लास्ट टर्म के अंदर कोई नई बात ना कीजिएगा। मेरी बातों के जवाब दें और अपनी बात को कंक्लूड करें। जी 2 मिनट दें इनको। ये इनकी सेकंड लास्ट टर्म होगी, फिर मैं सेकंड लास्ट टर्म लूंगा, फिर ये लास्ट टर्म लेंगे और फिर उसके बाद मैं लास्ट टर्म लूंगा, क्योंकि भट्ट साहब ने बात शुरू की थी, इख्तिताम मैं करूंगा। बहुत शुक्रिया जी, दें टाइम इनको। जी ये मेरी अब लास्ट टर्म है, पहले मैंने कह दिया फिर दोबारा कहता हूँ, ये लास्ट टर्म। आपने नई बात की है जी, वो जो जिन्होंने नबूवत का दावा किया उनको आपने क्यों नहीं माना? भाई हमें उनके दलाइल नहीं लगते कुरान के मुताबिक कि उनकी नबूवत का जो मुझे तो पता नहीं वो दलाइल देते क्या है। ना उनके किसी ने, ना उनकी किताब किसी मेरी तरफ पहुंची, ना कोई मानने वाले ने उनके पैगाम समझाया। तो अगर जो पता चला जो उनके मानने वाले उनकी जो हरकतें हैं वो तो कभी खुद भी उनका जिक्र नहीं करते।
तो भाई जब उनका दावा ही नहीं है, कोई सामने चीज नहीं, तो मैं कोई अंधा हूं कि मैं जाके मान लूं? क्या क्या मानूं? मुझे पता ही नहीं, दावा ही नहीं है, कोई ऐसा इंटरनेट साइट नहीं है कि जहाँ पे उनके दावे लिखे हो बंदा पढ़ सके। ठीक है, तो इसलिए हमने नहीं, हमें लगता कुरान के मुताबिक जो हम तक पहुंचा है, थोड़ा बहुत पहुंचा है, नहीं लगता, नहीं माना, तो आइंदा भी नहीं लगेगा, नहीं मानेंगे, क़यामत तक नहीं लगेगा, नहीं मानेंगे। लेकिन अगर लगा तो मान भी लेंगे। तो हमारा तो अकीदा ये है कि आते रहेंगे, कुरान से वो अपने दलाइल देते रहेंगे, फिर दलाइल दुरुस्त हुए तो उनको मानेंगे। दूसरी बात यह है कि आपने जो आयत पेश की, अभी तक आपने एक आयत पेश की है, और वो आयत भी हमारा अकीदा बता रही है कि शरीयत वाले नबी की नबूवत जारी रहेगी, नबी की इज्जत की नबूवत जारी रहेगी। गुज़श्ता सिलसिले खत्म हुए हैं उनके अपने, तो आपने अपने अकीदे के लिए एक भी आयत पेश नहीं की, जबकि मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया है कि जो ये कहे रसूल के बाद रसूल नहीं आएगा वो गुमराह है। आपने कहा जी मुझे बताएं कि आपकी जो ये आयत बताएं गज़ब के हवाले से। मैंने देखे, जब मैं अगर कहूं कि भाई लंदन शहर, तो आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि लंदन कहाँ में, क्योंकि ये आम फहम बात है। तो जब अल्लाह ताला फरमाता है कि यहूद ने हमेशा जो भी नबी आते रहे इनकार किया, बार बार, अल्लाह ताला आपको भी पता है, तो आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि फिर उसके नतीजे में क्या अल्लाह ताला ने किया? गजब का शिकार यहूद हुए कैसे? क्या वो यानी कि रोजा तोड़ के गजब का शिकार हुए? क्या वो नमाजें छोड़ के गजब का शिकार हुए? क्या वो किसी चले जी, सांप तोड़ के पैमाने डंडे मार जी? चलें भट्ट साहब, मैं भट्ट कहता साहब हूँ बस अगर कोई बात रह गई है भट्ट साहब, आपकी आखिरी टर्न है, तो कोई बात जी जी अगर मैं आपकी आपको रह गई है तो आप कर लें, जी जी, नहीं और नहीं कोई नहीं, बात रह उनको गई है हाफिज तो साहब को दे 2 मिनट। मेरा ख्याल मुका अच्छा मैं दें। लगा देता हूँ। मेरे ख्याल जी जी से मैं बस मैं कंक्लूड करता हूँ जी, मैं कंक्लूड करने लगा हूँ। औज़ु हाँ बिल्लाहि तो मिनश शैतानिर रजीम, इनको लगा देता हूँ मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 जी मिनट। थैंक यू। ये सुनिएगा जी, ये मिर्जा मसरूर साहब और मिर्जा ताहिर साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा। कहाँ लिखा हुआ है कि कई नबी ये हज़रत वाली बात नहीं करनी ना, ये नहीं बात कर रहे हैं। कोई पेश हुई है? नहीं भाई, ये नई बात नहीं, ये नहीं मुनासिब, आखिर पे नई बात नहीं हो सकती। आपने मुझे मना किया नहीं, था, जो आपने आखिर में जो नई बात की है, मैंने तो इनको आपके साथ आपने नई बात इनको की है। गजब का यार शिकार एक आपने मिनट पूछा समझ मैं नहीं, कहता हूँ दो बात की है, करना है, नई बात नहीं करनी आपने। कोई नई बात नहीं की मैं मैंने। कहता हूँ हाँ जी, ये नई मैं बात कहता तो हूँ नहीं नीचे कोई लोग सुन रहे हैं पुरानी कोई बात नई बात तो नहीं कि है। नई बात है कि पुरानी बात है, इनको चला लेने दे, देख उनको लेते हैं चलाने क्या है। दें, बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई ना आपने थोड़ी ना जवाब यार देना अगर है, मैं आप अगर आपसे बात होगा तो मुझे भी जवाब देना पड़ेगा, ऐसे नहीं बात। मैं अच्छा खत्म- जी, नहीं मैं नहीं, बाद में पेश इन्होंने कर दूंगा बोला था ना कि ना, नई मेरा बात टाइम मैं है। नहीं करूंगा, वो तो नई मैं बात नई कर रहे बात हैं ना, नहीं मुझे पता है करूंगा, ना। तो इन्होंने नई बात अगर की है तो फिर हाँ। पता चल जाएगा ना नीचे लोगों को। नहीं तो फिर अच्छा अच्छा चलें चले। जी, चलें जी, कोई बात नहीं, आप रोना डाल रहे हैं, मेरी दोबारा से अच्छा वो पता मेरा चल मतलब गया है इनको जी कि वो दोबारा। नई बात है, तो अभी उन्होंने पुरानी बात करनी अच्छा है। चलें जनाब, जो आप कंक्लूजन ना करें, टेस्टिफाई ना करें, रुके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुनाजरे के स्टार्ट में मैंने ये इबारत पेश की इनके मसीह मऊद की। उन्होंने फरमाया कि कुरान के ऊपर तदब्बर करने से ये मालूम होता है कि जिस तरह मूसवी सिलसिला में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ख़त्म करने वाले थे, उन पर ख़त्म हो गया सिलसिला, इसी तरीके से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए जो मसीले मऊद हो। फिर फरमाया चुनाचे जबकि मूसवी सिलसिला आखिर ईसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हुआ, ज़रूरी था कि मोहम्मदी सिलसिला का ख़ात्म भी ईसा मऊद होता। ये मिर्ज़ा साहब की इबारत है, मैंने घर में नहीं लिखी बैठ के। फिर मैंने ये इबारत भी पेश की, कलेमतुल फसल की, कि मिर्जा साहब के बेटे फरमा रहे हैं कि नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा इतना मामूली है कि आपके बाद नबूवत जारी रहे। भाई उन्होंने फरमाया है कि इसलिए उम्मत मोहम्मदिया में सिर्फ एक शख्स ने नबूवत का दर्जा पाया और बाकियों को यह नसीब नहीं हुआ, क्योंकि हर एक का काम नहीं कि इतनी तरक्की कर सके। ये कह रहे हैं इतनी तरक्की हो ही नहीं सकती जितनी तरक्की मिर्जा साहब कर गए। तो खत्म कौन मान रहा है? आप लोग खत्म मान रहे हैं, हम रसूलुल्लाह पर खत्म मान रहे हैं, आप लोग मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब पर खत्म मान रहे हैं। जारी किधर है? कौन सी आयत है कुरान की जहां से नबूवत जारी है? वो आयत ही पेश नहीं की। मैंने सवाल इनसे किया कि तशरीह नबूवत बंद किधर से की है, वो आयत भी पेश नहीं की। मैंने माकाना मोहम्मद नबा अहदिम मिन रिजालिकुम का तर्जुमा पेश किया इनको, इन्होंने उस पर भी कलाम नहीं किया। तो तमाम बातों को घुमा फिरा के कभी यहूद, कभी बांज, कभी रुश्दी, कभी कुछ। भाई ये तमाम बातों से क्या फायदा हुआ सुनने वालों को? और भट्ट साहब हमेशा की तरह बात को घुमा फिरा के
अपने घर जाने को तैयार हो गए और कहा कि बस मैं चले जी, मुनाजरा खत्म करता हूँ। हो बहुत शुक्रिया। गया 2 मिनट। अगर आपने और कुछ बोलना है, रह गया आपका बोलना, तो बोल सकते हैं। ये भी नई बात इन्होंने कर दी है, बिल्कुल रसूल की खिलाफ वर्जी, ये नई बात थी। ये नई बात नहीं है, आप मौजूद नहीं थे, आपको पता नहीं है कि हुसैनी मैंने साहब सबसे आप पहले मौजूद ये हैं? दो नहीं हवाले पेश किए हैं। जी हुसैनी साहब जी जी हुसैनी ये साहब, ये देख कोई नई बात है, लें, ये दो हो हवाले गया पेश इनका किए हैं। इनका जरा टर्न राना साहब खत्म हो बताएं। गया, मैंने इनकी टाइम एक कीपिंग मिनट, कर ली है। अब एक आप मिनट, देखें सैफ अहमदियत भाई, ठीक क्या है कर रहे अच्छा हैं। सानी साहब, ठीक है जी। सर साहब मैंने आपसे एक एक मिनट बात, एक मिनट रुके। यार राना आप साहब, टाइम आप ले मेरी लिया, बात 2 नहीं मिनट। सुनते, बीच में आके आप अपने लुक में देना शुरू कर देते हैं। ये मैंने हवाला पहले पेश किया है। मटर छीन लिए, हम क्या करना है? तामीर हाँ जी, कमेंट दें प्लीज। अब राणा साहब के और तामीर राणा को दो साहब साहब इतना के बता और दें हुसैनी भाई, चले राणा हुसैनी साहब, भाई, आपके 2 मिनट हुसैनी लग भाई गए हैं। राणा सिर्फ साहब इतना आप बता करें दें, बात। एक मिनट यार, एक मिनट, उनको पूरा, उनका 10 मिनट दे दें, लेकिन सिर्फ इतना बता दें हुसैनी भाई कि ये जो दो जी जी हवाले मैंने अभी लगाए हैं कंक्लूजन में, क्या ये मैं पहले पेश नहीं किया इसी मुनाजरे में? हाँ, पहले पहले पेश कर चुके हैं आप, वही बात, कोई नई बात तो नहीं। उस राना वक्त साहब कह राणा रहे हैं साहब कि मौजूद सोए हुए नहीं थे उठते ना। हैं और एकदम से आगे कहते हैं, राणा राना साहब साहब अभी मौजूद कर नहीं लें होते, बात, कोई पर नहीं। लेकिन हाँ पूरी बात को कंक्लूड करने में आ जाते हैं। तो राना साहब ये ना किया करें, चलें करें बात राना हाँ साहब। जी, राणा साहब आपकी बारी होगी स्टार्ट। जी पहले भी हुई थी, लेकिन वो किसी मजबूरी की वजह से नहीं स्टार्ट हो पाई। अभी अभी स्टार्ट हो गई है। अभी स्टार्ट करें राणा साहब, और फिर वो 2 मिनट वो लेंगे। चले राणा साहब स्टार्ट हो गई आपकी बारी। मेरे ख्याल राणा साहब की कॉल आई हुई है, तो वो 2 मिनट आप मूसा साहब को दे दें। पता नहीं, मूसा साहब ने तो बोला ही सानी नहीं। साहब मैंने कोई आपसे बात करनी है। मुझे तो हैं? आइडिया ही नहीं है कि किस बारे में बात हो रही है। मैं तो अभी आया अच्छा हूँ, चलो ठीक है, लेकिन तो बहरहाल फिर जी मैं कह रहा हूँ बहरहाल ये जो चले टाइम को खत्म करते हैं, वैसे ही डिस्कशन टाइम कर लेते हैं वैसे फिर। वैसे चलो डिस्कशन कर लेते हैं कोई, चलो फिर क्योंकि नया सिलसिला शुरू करते हैं। जी क्योंकि मैं सानी साहब, हुसैनी साहब मैं 100% श्योर हूँ ये काज़मी साहब को खत्म नबूवत की दलीलें पता है, आयात भी पता है इनको, लेकिन ये पता नहीं किस चीज को लेके जो है वो कुरान करीम को तदब्बुर से पढ़ते नहीं। अगर तदब्बुर करे थोड़ा सा तो उनको समझ आ जाएगी कि कुरान करीम में कहीं पे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं कहा गया, कहीं पे भी नहीं कहा गया। ये हमारा उन्होंने दावा कब है, कहा हमारा है चैलेंज है। उन्होंने कब कहा है? उन्होंने तो ये कहा ही नहीं कि वो आखिरी नबी। अच्छा सानी साहब मुझे आधा मिनट दे ठीक दे है जरा। ठीक है। जो आप बात कह रहे हैं, जैसे वो बांझ कह के बांझ का कीता है, उन्होंने तो बांझ कहा ही नहीं, तो वो क्यों साबित करें? उन्होंने आखिरी कहा ही नहीं, तो वो क्यों साबित करें उसको? जी सानी साहब, किस चीज का मुनाजरा जी हो रहा है जी हुसैनी साहब घंटे से? जी ये क्या यार टॉपिक चल रहा हाँ है? किस जी चीज का मुनाजरा जी, हो रहा है व्हाट्सअप घंटे से? करो, व्हाट्सअप की कहते जी हो व्हाट्सअप। जी ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜੀ 5 ਜੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੇ ਤੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤਾਲਾ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ मतलब ਆਪੇ उनवान मिर्जा साहब के हवाले होएगा ना, कि मिर्जा ਹਾਂ साहब ਉਹੀ के ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ हवाले। ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਜੋ ਦੇਖੋ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ नहीं ਕਿਹਾ ਸੀ नहीं, मेरा ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ मकसद ये है ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਰ कि एक है ਰੱਖਾਂਗਾ। खत्म नबूवत, देखो ਹਾਂਜੀ खत्म नबूवत होर चीज है, मिर्जा साहब के हवाले उनवान होर चीज है। अगर ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ तो ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਨਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ, ਉਸੇ ਪੈਰ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਮਹਾਰਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਰ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੂਲੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਅਸਰ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ, ਹਦੀਸ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੰਤਕੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ, ਅਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਅਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਦਾ, ਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बढ़ा ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਵਾਨ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ,
ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਕੋਈ ਉਹ ਪੜਨਗੇ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 6 ਘੰਟੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਦੀਦ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮਾਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਦਸਤ ਬਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਮੁਕਾਲਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤਮਾਮ ਹੁਜਤ ਹੋ ਜਾਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ चलो ਕੀਤੀ ठीक है, हवाले नोट करो। अच्छा हवाले पेन पेंसिल पढ़ो, जरा हवाले नोट करो, मेहरबानी करो। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋ 50-60 ਲੋਕ ਨੇ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ 5 ਸੁਣ ਲੈਣ ਹਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂ ਪੈਨਸਲ ਪੜੋ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਲਮ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੁਆਤ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਦੁਆਤ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਫਾ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, सफा नहीं अगर पढ़ा। कोई शायद छुट्टी हो गई थोड़ा सा पढ़ लो। दौर है, उन्हें आप व्हाट्सएप पे भेज दें। डिजिटल दौर का फायदा फिर नहीं 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 मैं इसको मैं मुतालबा करता हूँ, मेरे से मुतालबा लाइव पे मांगा गया, मैं लाइव पर दूंगा हवाला, लाइव पर हवाला दूंगा ताकि मेरे YouTube चैनल के ऊपर ये तमाम चीजें रिकॉर्ड हो जाएं, यार YouTube ताकि बवक्त की जरूरत काम आए। आपने कौन है YouTube चैनल दिखाओ मुझे। वो आप छोड़ें, वो मेरे रिकॉर्ड के लिए है, वो आपके लिए नहीं है। गलत बयानी कर रहे, मैंने उसमें जाके देखा कोई YouTube चैनल नहीं है ना। उस दिन मैंने देखा था MTA के ऊपर भी सिर्फ 10 लोग बैठे हुए थे। नहीं आपका चैनल अच्छा मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई बस करें जी। अच्छा बट साहब नोट करें जी, हवाले नोट करें। हवाला नंबर 1 लिखें, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 511। ठीक होगा। एक दूसरा वाला, दूसरा रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 404। ठीक है जी, ये हो गया दूसरा वाला। तीसरा खजाइन लिखते जाएं पूरे लिख लें। खजाइन जिल्द नंबर 3 सफा नंबर रूहानी 412। खजाइन, ठीक है, नाम जी। सही लेना, रूहानी खजाइन। भाईजान रूहानी खजाइन कह रहा हूं, मैंने कोई गलत बात नहीं कर दी, क्या हो गया? खजाइन जिल्द नंबर 3 412 लिख लिया आपने? जी जी। रूहानी खजाइन। अच्छा अभी लिखें खजाइन जिल्द 3 सफा 432। ठीक होगा। पांचवा वाला, नाम की कोई किताब नहीं है हमारे। जिल्द नंबर 1 यार एक मिनट यार इंटरप्ट नहीं करें। राणा साहब प्लीज, नाम की कोई किताब नहीं है। राणा साहब प्लीज एक मिनट। लिखिए जी अगला दुआया खजाइन एक किताब है, जिल्द नंबर 1 किताब शायद की है जब बात में दुआया खजाइन, शायद वो दुआया खजाइन की बात कर रहे हैं। मुझे लिखने दे यार ना करो यार, बात को गलत मलत ना करो प्लीज। अच्छा जी पांचवा वाला जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 103। छठा किताब का नाम भाई 5 वाले काफी है, मैंने कोई आपके साथ साल नहीं लगाना। और नहीं एक मिनट यार भट्ट साहब आप लिख नहीं मैंने आपसे 5 मांगे थे, 5 मुझे मिल गए हैं। अगर यहाँ पे जवाब ना दे सका तो मैं 100 का भी नहीं दे मेरी बात सकता। सुने, अगर यहाँ पे जवाब आपके तो बाकी भी आपके हवाले ऐसे ही। ठीक है। ओ भट्ट साहब यार 5 मैंने ले लिए, चाहे बात 5 अस्सलाम वालेकुम। और बात 5 पे कर लेना यार, लिख लो ना यार। नहीं मैं नहीं, 5 मैंने नोट कर दी, क्यों लिखूं मैं जब बात ही 5 पे कर दी है। हवाला भी और नहीं लिखना। अच्छा चले आगे चले ना करें, आप नोट ना करें, नीचे मुसलमानों को लिखवा लो, मुसलमान नीचे लिख दें। ये हमारे एक अली यार भाई हैं, ये हवाले लिख लें यार, मौका दे दो यार मेरे हमको, हमें हराने का कितना शौक है इन्हें। आप अस्सलाम वालेकुम। और बात 5 पे कर लेना यार, लिख लो ना यार। नहीं मैं नहीं, 5 मैंने नोट कर दी, क्यों लिखूं मैं जब बात ही 5 पे कर दी है। हवाला भी और नहीं लिखना। अच्छा चले आगे चले ना करें, आप नोट ना करें, नीचे मुसलमानों को लिखवा लो, मुसलमान नीचे लिख दें। ये हमारे एक अली यार भाई हैं, ये हवाले लिख लें यार, मौका दे दो यार मेरे। हमको, हमें हराने का कितना शौक है इन्हें। आपकी तबलीग को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए हवाले दे रहा हूं, पहुंचाने दे मुझे, ना रुकावट बने। हवाला नंबर 6 खजाइन जिल्द नंबर 9 सफा नंबर 164 164। हवाला नंबर 7 खजाइन नाम की कोई किताब जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 461 सफा नंबर 431। हवाला नंबर 7 लिखें, जिल्द नंबर 3 जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 431। आगे लिखें जिल्द नंबर 7 वॉल्यूम 7 पेज नंबर 200 8वां हवाला। 9वां हवाला
जिल्द नंबर 19 5 में सफा बात नंबर कर रहे 13 हैं। हम कहीं नहीं भाग और रहे, नीचे कोई भी नहीं नहीं लिख जा रहा है। 5 के बाद कोई नहीं लिख रहा है। बोली नीचे जाओ, लिख रहे हैं, नीचे बोली नीचे जाओ, कमेंट देखें, बोली कमेंट देखें, कमेंट बोली देखें, जाओ। कमेंट्स देखें। वो आपका ही जी बंदा जी, है जो लिख हवाला रहा है, नंबर हम मुस्लिम की कोई नहीं लिख हवाला रहा। नंबर वो हवाला आपका नंबर ही 9। बंदा। नहीं हम लिख अच्छा रहे हैं। यार, ओ अच्छा यार, ना लिखें, ना लिखें, खामोश रहें। एवरी टाइम जाया करी अच्छा जा रहे हो अच्छा, जिल्द यार। नंबर 19 5 में सफा बात नंबर कर रहे 13 हैं। हम कहीं नहीं भाग और रहे, नीचे कोई भी नहीं नहीं जा लिख रहा है। 5 के बाद कोई नहीं लिख रहा है। नीचे बोली जाओ, लिख रहे हैं, नीचे नीचे बोली जाओ, कमेंट देखें, कमेंट्स देखें, कमेंट्स बोली देखें, जाओ। कमेंट्स देखें। वो आपका ही जी बंदा जी, है जो लिख हवाला रहा है, हम नंबर मुस्लिम की कोई नहीं लिख हवाला रहा। नंबर वो हवाला आपका नंबर ही 9। बंदा। नहीं हम लिख अच्छा रहे हैं। यार, ओ अच्छा यार, ना लिखें, ना लिखें, खामोश रहें। एवरी टाइम जाया करी अच्छा जा रहे हो। अच्छा, अगला देखें, हवाला नंबर 9 जिल्द नंबर 19 सफा नंबर 13, हवाला नंबर 10 जिल्द नंबर 14 सफा नंबर 393 393 जिल्द 14 पढ़ते भी जाओ क्या लिखा सफा है इस नंबर हवालों में। 393। वो पढ़ देते हैं यार, एक मिनट सब्र करें, पढ़ देते हैं, सारे पढ़ते पढ़ भी देंगे। जाओ ना, साथ साथ पता भी तो चले क्या कह रहे हो। हवाला और हवाला यार हवाला सब्र भाई करो हुई है। भाई, और भाई नहीं सब्र सबर कर लो, क्या मुझे करें, बताने। पढ़ते पढ़ो बिना हवाला क्या है। इदरीस साहब आप अभी आए हैं, ये एक और बात चल रही है। यार, इदरीस ला भाई इलाहा एक और बात इल्लल्लाह। चल रही है। आप अभी आए हैं ना, वो डिबेट चल रही ला है। नहीं तो इलाहा वही इल्लल्लाह। तो मैं कह रहा हूँ ना, जो भी बात आ रही है, जो आज यार नए कितना हैं डर वो नहीं नेक्स्ट समझ सेशन रहा हूँ। लगेगा, उसके लिए बात हो रही है, दूसरी नशिस्त के तो लिए। बात तो फिर 5 बार अच्छा, लगी हुई अगली थी। नशिस्त की बात हो रही है जी। ये एक अब आप मिनट, 5 5 से वालों 10 की में उन्होंने चले गए हैं। और उन्होंने बात की थी 5 वालों की। मैंने नहीं कहा था, मेरे पास तो बेशुमार है, लिखते जाएं। तो 10 हवाले पेश कर हवाले चुका। पढ़ो फिर। उन्होंने कहा था और यार पढ़ हमें लेता पता हूँ चले भाई, बात क्या क्या हो हो गया रही यार, है। आप लोग इतने परेशान हो जाते, क्या हो गया? परेशानी की बात नहीं है, अच्छा तुम पढ़ो तो सही, हमें भी पता चले क्या बात हो रही है। अच्छा, चले पढ़ते हैं। आपको नहीं ना पता, हाँ पढ़ो। आपने नहीं पता, पढ़ी किताबें 3 दफा, आप में किब्र पाया जाता है। अच्छा, और नहीं नहीं रहने दो, हवाला तुम्हें नंबर तो हमारे 11 तुमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा तुमने, तो तुम्हें क्या अल्ताफ भाई। कुफर पाया जाता है तुम्हारे अच्छा, अंदर। जो कुरान यार नहीं क्या पढ़ता हो है गया बड़ा भाई? है। फायदा कोई नहीं, कोई और जनाबे वाला क्या हो गए हैं? नहीं साथ साथ पढ़ते जाओ ना, कि ये हवाला है जी, मैं ये हमारा पढ़ रहा हूँ और ये हवाला है। और यार इदरीस साहब, बहुत शौक आंदे ना बोलने दा थानू ना गल दा पता ना वास्ता की हो रही है थे ਅਸੀਂ या तो खबरें पता ना लग दसो ना की गल हो रही है, दसो तो सही। लड़को बैठ के क्यों चुप जिन्हें कर कहिया सी। आंदे ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚ ਕੜਮ ਪਾ ਦੇਣਾ अच्छा, मैं तो अगला पढ़ने जी, देगा पढ़ा 11 नंबर पढ़ा हवाला। क्यों पता ये दसो। ਬੋਲੀ ਜਾ हवाला ਰਹੇ नंबर 11 आ गल हो हवाला रही है, नंबर 5 11 हवालियां की गल होई है, 5 के बाद फिर बस करो। और 5 की गल नहीं हुई, वो गलत सुनिंदा। अच्छा, मेरे हवाला ख्याल में नंबर आपको 11 ना रिकॉर्ड करके ना वीडियो चला देनी चाहिए, अपलोड कर देनी सर, चाहिए, एक ऐसे मिनट नहीं रुक आप कर जाए ना, पाएंगे। सैफे अहमदियत साहब, एक मिनट रुक जाए, मेहरबानी करें ना यार, इतनी जल्दी मैं हवाले दे भी चुका होता अभी तक। अच्छा जी, हवाला नंबर 11 नोट करें मेरे मुसलमान भाई नीचे। हवाला नंबर 11 आप नोट करें करते जाओ मेरे नोट, हवाला मेरे हवाला मुसलमान भाई हवाला नीचे। हवाला। ये क्या बला बात खजाइन हुई, हवाला पढ़ो जिल्द पता नंबर चले 13 क्या बात हो रही है। जिल्द नंबर जो नए 13 आ रहे हैं जिल्द उनको भी नंबर पता 13 चले, पुरानों को भी पता चले। जिल्द नंबर 13 सफा 217 और 218। अगला हवाला 12वां हवाला जिल्द नंबर 12 सफा नंबर 93। 13वां हवाला जिल्द नंबर 1 हर सफा हवाले नंबर के जवाब 19। देने को तैयार हैं, पहले 14 नंबर हवाला यही तो मैं सफा कह रहा नंबर हूँ, पहले हवालों का 352। पता तो चले आप कि पढ़ टाइम क्या जाया रहा कर है, रहे हैं। हवाला हवाला क्या हुआ। आप और टाइम सुन लो, जाया कर रहे हैं पढ़ो तो सही, काफी क्या साहब, कर रहा है। फिर हम हवाला भी नंबर बोलेंगे 11 है, सब और करा देंगे। हवाला नंबर फिर वो 11 ठीक है, हाँ तो यही हम होगा और क्या हवाला होगा। नंबर 11 इसका पूछा गया है। काम है कि हवाला नंबर 1 पढ़े, फिर आगे बात उस पे करे। हवाला नंबर 2 पढ़े, उसकी इबारत पढ़े, फिर बात आगे चले। ऐसे थोड़ा हवाला हवाला करता जाए कि ना पिछलों को समझ आए ना अगलों को क्या बात हो रही है। नोट कर ले, उसके बाद सारे पढ़ते हैं एक एक करके, समझ नहीं है, एक एक करके 5 सारे वाले पढ़ते हैं। देने और थे। यार नहीं हमें समझ तो ना आए, समझ यार। एक मिनट को वाले खाने ये इनके दरमियान डिबेट हुई है अभी, वो बात 20 लिखा लें तो 140 5 का वादा हुआ था, उन्होंने 20 आ रही है। जमात को कोई फर्क नहीं पड़ा, इनको लिखाने दे, अपना शौक पूरा करे, 50 वाले लिखाएं, लिखाने दे, लिखाते जाए। हवाले उठाए ना, ये क्या हुआ ये कि मुजाहिद हवाला है। हवाला हवाला कुछ पता तो अच्छा चले जी, क्या अच्छा जी। हवाला है, क्या इबारत है। अच्छा जी, अभी आगे 13वां इबारत हवाला मैंने बताएं। पेश कर दिया, मैं बता रहा हूँ। हवाला नंबर 13 था, हवाला नंबर 13 जो मैंने लिखवाया था, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 19 था। हवाला नंबर 14 नोट करें मेरे मुसलमान भाई नीचे। रूहानी खजाइन वही जिल्द बात, नंबर 9। हवाला हवाला नोट करें, हवाला नोट करें। और तुम एक ही दफा कह दो हवाला नंबर 1 से लेके हवाला नंबर 25 तक नोट कर लो बस। चलें जी, इदरीस हवाला नंबर 1 से ये लेके क्या बात है, 25 बात तक नोट कर लो। पता तो चले इदरीस क्या भाई बात वो हो रही है। हवाले पे बात नहीं करने के लिए कर रहे, वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे पास कितने हवाले हैं। जान के हवाले कर रहा है, उनके जान पास के तो कर रहा है। बेशुमार चले है, ना सारी यार, किताब ही हवाले होती हैं। और क्या हो गया यार आपको, मिर्जा साहब की किताबों के आगे उनको उनकी कर बात लेने खराब हो दे। गई यार। फ्रेश कर लेते हैं, फ्रेश होके आ जाओ।
चलें जी, इदरीस हवाला नंबर 1 से ये लेके क्या बात बात को कर लो। इदरीस क्या भाई बात वो हो रही है? हवाले पे बात नहीं करने के लिए कर रहे, वो इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे पास कितने हवाले हैं। जान के हवाले कर रहा है, उनके जान पास के तो कर रहा है। बेशुमार चले है, ना सारी यार, किताब ही हवाले होती हैं। वो क्या हो गया यार आपको, मिर्जा साहब हाँ, किताबों के आगे उनको कर क्या लेने हो दे। गया यार। फ्रेश कर लेते हैं, फ्रेश होके आ जाओ जरा तो ठीक हो जाए, कोई मसला नहीं, दोबारा बात कर लेते हैं। माशाल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सैनी साहब। मैं कहना जी तुसी आउंदे हो ते गल किस कदर हुसैनी साहब मैं आपसे गुजारिश कर सकता गल हूँ वाज़े ही हो जाती है। कदी सैब भाई कदी एक मैं मिनट रुकें। वाज़े कर देना, कदी कदी तुसी वाज़े कर देंदे। जी जी तुसी गल करो। अच्छा सैब भाई एक जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सैनी साहब। मैं कहना जी तुसी आउंदे हो ते गल किस कदर हुसैनी साहब मैं आपसे गुजारिश कर सकता गल हूँ वाज़े ही हो जाती है। कदी सैब भाई कदी एक मैं मिनट रुकें। वाज़े कर देना, कदी कदी तुसी वाज़े कर देंदे। जी जी तुसी गल करो। अच्छा सैब भाई एक मिनट रुकें। अच्छा मेरे दोस्त नीचे एम अली FT तुसी आउंदे हो ते गल किस कदर हुसैनी साहब मैं आपसे गुजारिश कर सकता गल हूँ वाज़े ही हो जाती है। कदी सैब भाई कदी एक मैं मिनट रुकें। वाज़े कर देना, कदी कदी तुसी वाज़े कर देंदे। जी जी तुसी गल करो। अच्छा सैब भाई एक मिनट रुकें। अच्छा मेरे दोस्त नीचे एम अली FTR साहब, हवाला नंबर 14, रूहानी खजान जिल्द नंबर 9, सफा नंबर 352। चलिए साहब सिर्फ 2-3 मिनट चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जी जी ठीक। फिर लिखें हवाला खजाइन जिल्द 13, सफा नंबर 215, किताबुल बरिया। 28वां हवाला, 28वां हवाला रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 7, सफा नंबर 302। 29वां हवाला रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 9, सफा नंबर 339। 30वां हवाला 30th आखिरी हवाला, 30वां हवाला जिल्द नंबर 3, सफा नंबर 169 एंड 170। ठीक है जनाब, ये हुए कुल 30। ये इसके लिए अगले कहते हैं 30 हो गया साबित ये 30 आयात से, बाहर हाँ रहा अमवात से, हो गया साबित ये 30 आयात से। ये हो गया त्रिया साबित ये 30 आयात से। इब्ने मरियम मर गया हक की कसम, दाखिले जन्नत हुआ वो मुहतरम, वो नहीं रहा बाहर अमवात से, हो गया साबित इन 30 आयात से या हवाला जात से। जी हुसैनी साहब, जी जी अगर हम इनके इजमा के 5 हवाले पेश करें तो क्या ये जवाब देंगे? पूछ लें इनसे। हाँ जी करो जरूर, क्यों नहीं। जी कादमी साहब, अगर आपके इजमा की किताबों से 5 हवाले पेश किए जाएं तो आपने खुद पढ़ना है और खुद हमें समझाना है कि वो किस क्या इजमा कह रहे ਦੀਆਂ हैं। ਜਿਲਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ हाँ जी, मैनू भी गल नहीं समझ आई। ਇਜਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ। इजमा दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਤਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੱਸ ਉਹ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਸਾ ਨੋਟ ਥੋੜੀ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਤਬ ਸਮਝੋ। ठीक हो गया मैं इंशाल्लाह ताला। इस तरह तैयारी थोड़ी है जिस तरह खलीफा वक्त दी है। हाँ जी ठीक है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ लोखो ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਾਦਮੀ ਸਾਹਿਬ। हाँ गल मैनू पता है वैसे। नहीं किस मौजू ते गल हो रही सी यार, ये भी तो जरा सानू भी तो दस दियो। ਇਹ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ मौजू मिलिया जुलिया ही सीगा, कोई मौजू खास नहीं सीगा। मौजू होंदा है अजराए नबूत ते खत्म नबूत अल्लाह वा मैनू दसो सानी साहब और जी, ਇਹਦਾ जी। कदे फैसला भी होया है, मैं कोई एक फैसला गल मैं तो कोई आयत पेश कर देना ते करो जी, करो। अगर दोस्त नज़ीर मौजूद साहब, कर नज़ीर ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆੜੇ ਗਏ ਹੋ? जी ਆੜੇ ਗਏ ਹੋ? ਆੜਾ आड़ा खा रही है ਆਹੋ, वो खा रही, मैं गया एक दो बारी, लेकिन वो तो पुरानी गल है जी। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵਾਕਫ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं ਅੱਛਾ ਠੀਕ जी, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕੋ ਹੋਰ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਉਹ ਚੱਕ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ। ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੀ ਫਤਿਮਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਨਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ ਮੁਗਲ, ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ ਨੇ।
ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 79 ਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ हाँ ਬਾਅਦ तो तुसी तो खैर पुराने आए हो, ठीक है, जी ठीक है, अच्छी बात। जी कुछ जी सवालात मैं हैं, आपने एक- टाइम ही नहीं मिल रहा है। जी ये मतलब जो कुछ हो रहा है क्या ये इल्मी तरीक़ेकार है? मतलब दो बंदों के नहीं, ये तो- दरमियान ਕੋਈ गुफ्तगू हुई है। ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ आप अभी आए ना, हम तो बड़ी देर के जी बैठे हैं, एक फिर हमारी मिनट बारी आ मेरे जाती है। भाई एक मिनट खामोशी कर करना मैं उस पर गल कर लेना कोई मसला जी नहीं जी जी फिर हम चले शाही जाते हैं, मिलाद फिर मैं एक मिनट घंटे का बैठा है। मौका ही नहीं मिल रहा बात करने का। खलीफा बकर साहब भी यार कोई बोले ना फिर दरमियान च आप बाद में है ना, बारी का इंतजार कर लें, हम पहले जी कहे जी हुए जी हैं। सनी साहब और खलीफा बकर साहब दोनों ने मैं मुहतरमा ईसाई मनाद कुरानी करीम दे अरबी दे बहुत बड़े माहिर नाल मेरा भी वास्ता साढ़े बाद बंदा वास्ता पैंदा उन्होंने कुरानी करीम हदीस बड़ी गहराई नाल पढ़ियां ने और पढ़ने दा उन्हां दा जेहड़ा इन्हां दा नीयत सी ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ मोहतरम भाई खलीफा बकत ने किताबां मसीह मसलम दी पढ़ियां ने और उस नजर नाल पढ़ियां ने कि जिथों उन्होंने इतराज नजर आवे ठीक है लेकिन मैं फिर भी इन्हां दा मशहूर हाँ इन्हां ने कम ममूरे जमाना दी किताबां नूं पढ़ने दी कोशिश कीती है हुण कोई दोस्त गल करना चाहन तो गल कर लैण मेरी गल खत्म हो गई जी ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। बस जी आमर हक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सनी साहब की हाल है? क्या हाल है?